প্রতিটি অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর নিয়ে শুরু করছি আজকের ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাবো সরাসরি বিস্তারিত খবরে। শুক্রবার 5 রাজ্যের নির্বাচন তালিকা ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন। আগামী 26শে এপ্রিল শিল্পাঞ্চলে নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে। তাই এদিন বঙ্গধ্বনির মাধ্যমে যুব নেতা অভিজিৎ ঘটকের নেতৃত্বে নির্বাচনের প্রচার শুরু হলো উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত 26 নম্বর ওয়ার্ডে। এদিন অভিজিৎ ঘটক সাধারণ মানুষকে আবেদন জানায় টিএমসিতে ভোট দেবার জন্য। तृणमूल कांग्रेस ने पूरे बंगाल में फैलाया है जो स्लोगन है बांग्ला जो हम लोग का जो बंगाल है वो उनका बेटी को ही चाहते हैं, बांग्ला की जेल में नहीं चाहे। तो यही जो स्लोगन है, ये स्लोगन का मतलब है, देखिए आज कोई गुजरात से आके बोल रहा है कि गुजरात लड़ाई करेंगे बंगाल में, कोई दिल्ली से आके बोल रहा है कि बंगाल को हम लोग चलाएंगे, कोई यूपी से आके बोल रहा है कि हम लोग बंगाल को चलाएंगे। लेकिन जो खुद यूपी को संभाल नहीं सकता है, जो खुद गुजरात को संभाल नहीं सकता है, वो आ रहा है बंगाल को संभालने। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि बांग्ला निजेर मेয়েকেই চায়, তাই মমতা ব্যানার্জি বাংলার মেয়ে এবং মমতা ব্যানার্জিকেই বাংলা চাই, সেটাই হলো আমাদের স্লোগান। तो ये जो स्लोगन है, ये चारों तरफ हम लोग ये जो बंगाल में रहते हैं, ये सभी का दिलों का आवाज है, ये दिल का आवाज आज एक स्लोगन बन के चारों तरफ पे हम लोग ये फैला रहा है। तो इसीलिए आज यहाँ पर 26 नंबर वार्ड में ये स्लोगन का उद्घाटन हो रहा है, आगाज हो रहा है, और आज यहाँ पर से ये स्लोगन सब तरफ 26 नंबर वार्ड में लोगों का मुंह से सब में हम लोग यही आवाज करेंगे। तो इसीलिए आज ये पर प्रोग्राम ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্দাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল।
বাইকের যে কোনো বেস্ট সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই যোগাযোগ করুন আপনাদের শহরের বেস্ট বাইক সার্ভিস সেন্টার সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের এখানে যে কোনো মডেলের বাইকের সার্ভিস সঠিক দরে প্রোভাইড করা হয়, তাও আবার খুবই তাড়াতাড়ি। আমাদের সার্ভিস একবার উপভোগ করলে আপনি আবার নিশ্চয়ই আসবেন। তাহলে যে কোনো বাইকের সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই আসুন সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের ঠিকানা দোমহানি বাজার, জামুরিয়া রোড। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন 8918989747 এবং 7001174294 এই নম্বরে। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় 9টি বিধানসভার অতি স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা 783টি ও স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা 827টি। শনিবার দুপুরে আসানসোল জেলা শাসকের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাঝি ও আসানসোল দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার সুকেশ কুমার জৈন জানান, শতাংশের হারে মোট বুথ বা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের 28%, একইভাবে স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা শতাংশের হারে 27% বেশি। পাশাপাশি অতি স্পর্শকাতর ও স্পর্শকাতর এলাকায় ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে রুট মার্চ শুরু করা হয়েছে। এই বিষয়ে আরো কি বলেছেন আমরা শুনে নেব। ডিপেন্ডেন্ট বা আনরেকগনাইজড পলিটিক্যাল রেজিস্টার্ড আনরেকগনাইজড পলিটিক্যাল পার্টি আছেন, তাদেরকে একটু প্রভিজারকে সকলের আসার দরকার নেই। মানে वो प्रेस नोट रिलीज किया, उनके द्वारा हम लोग को ये जानकारी मिला हमारा शेड्यूल ऑफ इलेक्शन इस पश्चिम वर्धमान जिला के कब होगा। मैंने ये अनाउंस कर रहा हूँ, ECI जी हमको शेड्यूल दिया उनके बारे में। इस जिले में डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगा 31 मार्च, लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन होगा 4 अप्रैल, डेट ऑफ स्क्रूटिनी 8 अप्रैल, लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉल 12 अप्रैल, डेट ऑफ पोल 26 अप्रैल, डेट ऑफ काउंटिंग 2 मई एंड डेट ऑफ कॉम्प्लीशन ऑफ द इलेक्शन दैट इज 4 मई। इसी बारे में जस्ट कुछ देर पहले इस जिले के जितने पॉलिटिकल पार्टी था उनके साथ हम लोग एक मीटिंग किया। उनको ये जानकारी दिया जे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो गया तो उनको क्या करना है क्या ना करना है उनको सब कुछ हम लोग अवेयर कर दिया। तो और एक इन्फॉर्मेशन उनको भी दिया जे उन्होंने जो मीटिंग मिছিল रैली के लिए जो परमिशन उनको चाहिए, ये परमिशन मिलेगा आरओ के पास। उनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास, बट ये जो एप्लीकेशन होगा 100% एप्लीकेशन ऑनलाइन में भी होगा। कोई ऑफलाइन मोड में कोई एप्लीकेशन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब वो देंगे तो हमारा वहाँ पे आदमी रहेंगे, वो जो अपलोड कर देंगे। उनको हेल्प करने के लिए हमारा आदमी बीडीओ ऑफिस में रहेंगे, आरओ ऑफिस में रहेंगे, हमारा ऑफिस में भी रहेंगे। हो सकता है हमारा आदमी उनको हेल्प कर देंगे, लेकिन उनको ये परमिशन ऑनलाइन से ही मिलना चाहिए। और एक जानकारी दिया जब रैली होगा उस रैली के बारे में, ओनली इन ए रैली only 5 vehicles can take participate in a rally at a stage. So दो रैली के बीच आधा घंटा 30 minutes there should be a clear cut just interval in between 2 rallies. तो उनको भी हम लोग ये बता दिया। हमारा वो जो इन्फोर्समेंट रहेगा एक्सपेंडिचर के लिए, हमारा जो टीम फील्ड में काम करेंगे, हमारा फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ पे 36 यूनिट्स काम करेंगे, हमारा सी विजिल टीम 36 यूनिट, हमारा स्टैटिक सर्विलेंस टीम 27 यूनिट, हमारा वीडियो सर्विलेंस टीम 27, वीडियो व्यूइंग टीम 27 एंड अकाउंटिंग टीम 9 यूनिट काम करेंगे। उस टीम का काम होंगे जो कितना खर्चा हो रहा है, कैंडिडेट कितना खर्चा कर रहा है, उनको वो जो प्रचार कर रहा है एंड कैंडिडेट कितना खर्चा कर रहा है, क्योंकि ईच कैंडिडेट can expend maximum 30.80 lakhs for their publicity and प्रचार पर्पस। सो इसीलिए हमारा ये टीम तो काम करेंगे, फील्ड में रहेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये निर्णय लिया जिस वोटर जिसका एज 80+ एंड जिस वोटर वो PWD है, फिजिकली विथ हेल्थ,
तो उनका पास जिसका सर्टिफिकेट 40% का रहेंगे PWD सर्टिफिकेट, वो वोटर, और जिस वोटर को कोविड इन्फेक्शन हो जाएगा और सस्पेक्ट होगा उन्होंने उनको हम लोग PB वोट इशू करेंगे, PB बैलेट पेपर इशू करेंगे। हो सके तो उनसे घर से वो वोट दे सकते हैं। तो ये जानकारी उनको दिया। नॉमिनेशन उन्होंने ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये भी उनको ये जानकारी दिया। और EAP जो न्यू वोटर है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, उनके जो मोबाइल फ़ोन है वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं, उनको भी ये जानकारी दिया। तो आज के इसी बारे में चर्चा हुई, तो ये हमारा जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল বেসরকারি গ্যাস প্ল্যান্ট। আসানসোল বার্নপুর স্থিত 106 নম্বর ওয়ার্ডে সামডি গ্রামের শিব মন্দির সংলগ্ন ফাঁকা মাঠে দুপুরবেলায় হঠাৎ আগুন লাগায় চাঞ্চল্য ছড়ালো বার্নপুর এলাকায়। স্থানীয়রা তাড়াতাড়ি খবর দেয় বার্নপুর থানার সাথে দমকল বাহিনীকে ও বার্নপুর ইস্কোকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রাজ্য দমকল বাহিনী ও ইস্কোর দমকল বাহিনী। দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থলে দুই পাশে বেসরকারি গ্যাস প্ল্যান্ট থাকায় যে কোনো মুহূর্তেই ঘটে যেতে পারত বড়সড় অগ্নিকাণ্ড। ওটা একটু কনফার্ম করুন আপনাদের। কি হয়েছিল? ওই দিক থেকে পুরো আগুন, পুরো উপর আগুন চলে আসছিল পুরো, মানে এর মধ্যে পুরো আগুন ঢুকে গেছিল। তো আপনারা জানেন না যে কিভাবে এটা? না, সেটা তো জানা ছিল না। হবে দুষ্টুমি করে কোথাও আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, রাস্তা ধরে মাচিস খেয়ে বিড়ি খেয়ে ফেলে দিয়েছিল, হবে সে আগুন পুরো একদম জ্বলে ছাই হয়ে গেল পুরো। তো এখানে কি কারো মানে ক্ষতি হয়েছে? ক্ষতি বলতে বেড়া ছিল, বেড়া সব পুড়ে গেছে। বেড়া যে ছিল বাড়ির মধ্যে পুরো বেড়া সব পুড়ে গেছে। হ্যাঁ, একটুর জন্য বাড়িতে আগুন ঢুকে যেত। এটা কোন জায়গা পড়ছে? এটা সামনে শিব মন্দির সামনে। কত নম্বর ওয়ার্ড পড়ছে? এটা 106 নম্বর ওয়ার্ড। আপনার নাম? আমার নাম পরিতোষ ঘোষ। CSF के बल मुख्यालय बयान देने के लिए अधिकृत होते हैं। फिलहाल हमें समाचार प्राप्त हुआ था सेफ्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सेल ISU बानपुर के थ्रू श्यामडी गांव में लगे हुए इस आग में गांव वालों की मदद करने के लिए सूचना प्राप्त करती तत्काल प्रयास से हम लोग गांव के लिए अग्रसर हुए और फर्स्ट टेंडर के साथ जिसकी वाटर टैंक कैपेसिटी लगभग 5000 लीटर है, यहाँ गांव में पहुंचकर हमने देखा स्टेट की फायर सर्विस टीम ऑलरेडी घटनास्थल पर मौजूद तथा फायर फाइटिंग में शामिल थे और बाकी तरफ जो आग का बिस्तर हो रहा था उस बिस्तर को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए यथाशीघ्र संभव पानी की बौछार करते हुए लगभग 10 डिलीवरी होस के सहारे तकरीबन 200 स्क्वायर मीटर एरिया में फैले हुए आग को नियंत्रण में लाने के पश्चात फायर फाइटर्स के द्वारा गांव वाले के साथ में सीधा संपर्क स्थापित करते हुए सीधा बढ़ता किया गया और इस पूरे कार्रवाई की एक सुचारू नेतृत्व देने के लिए, कौशली नेतृत्व देने के लिए फायरिंग कमांडर होने के नाते मैं निरीक्षक अग्नि भास्कर दास, मेरे साथ में सेफ्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से DM सेफ्टी हिमांशु नीरज जी और फायर के तमाम अधिकारी प्रिवेंशन इंचार्ज चरण सिंह जी, सुब्रत घोष जी और हमारे पूरे टीम यहाँ पे सहायता के लिए उपलब्ध थे। हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे स्थानीय पुलिस प्रशासन के प्रति, सिविक वॉलंटियर्स के प्रति जिन लोगों ने बेहतरीन कार्रवाई किया और सबसे पहले और सबसे अंत में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम गांव वालों की जिन्होंने बेहद संजीदगी की परिचय देते हुए इस मुश्किल घड़ी में साथ निभाया और किसी प्रकार की किसी किस्म की खलबली ना मचने देते हुए इस स्थिति पर निरंतर नियंकुश नियंत्रण बना के रखे और अंत में आखिरकार फायर फाइटिंग सुचारू रूप से सफल किया गया है, कामयाब हो चुका है, जिसके पश्चात सबके साथ वार्ता करने के उपरांत सभी को हम लोग नियंत्रण में लाने के पश्चात कॉन्फिडेंस पे लाते हुए ब्रीफिंग देते हुए अब डिब्रीफिंग के बाद प्रस्थान करने वाले हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बगल में तो जो एक गैस प्लांट है, ये जी। तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। जी, जहाँ तक हमने देखा है इस घटना से उस गैस प्लांट के प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। बड़ी दुर्घटना की इस प्रकार कोई खतरा यहाँ पे नहीं था। हाँ, अवश्य गांव वालों ने अगर जो संजीदगी दिखाते हुए समय पर कार्रवाई नहीं की होते तो आग और फैल सकता था। ये हवा की रुख के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी कारण से हवा की रुख उस दिशा में जाते तो उस दिशा में जाने का संभावना हो सकता था, परंतु इस स्थिति में यहाँ पर किसी प्रकार की खतरा नहीं था और खतरों से खेलते हुए खतरों के खिलाड़ियों ने आग पर भली भांति समय पर नियंत्रण कायम किया है, जिसके लिए मैं स्टेट फायर सर्विस, उपस्थित पुलिस प्रशासन, सिविक वॉलंटियर्स, गाँव ইন্ডাস নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। বাইকের যে কোনো বেস্ট সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই যোগাযোগ করুন আপনাদের শহরের বেস্ট বাইক সার্ভিস সেন্টার, সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের এখানে যে কোনো মডেলের বাইকের সার্ভিস সঠিক দরে প্রোভাইড করা হয়, তাও আবার খুবই তাড়াতাড়ি। আমাদের সার্ভিস একবার উপভোগ করলে আপনি আবার নিশ্চয়ই আসবেন। তাহলে যে কোনো বাইকের সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই আসুন সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের ঠিকানা দোভানি বাজার, জামুরিয়া রোড। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন 8918989747 এবং 7001174294 এই নম্বরে। ইন্ডাস নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। শুক্রবার থেকে শুরু হলো শিল্পাঞ্চলে বুকে ফিটনেস ফ্যান্টাসি নামক একটি নতুন জিম। আসানসোল হটন রোড স্থিত রিগেল ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের 2 নম্বর ফ্লোরে এই জিমের উদ্বোধন করা হয়। জিমের অনার জানান, আমাদের শিল্পাঞ্চলে এটি একটি আধুনিকতম জিম, যেখানে বাচ্চা থেকে শুরু করে মহিলা ও পুরুষেরা নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার্থে এই জিম ব্যবহার করতে পারবেন। জিমের অনার জানান, খুব কম পয়সা ব্যয় করে এই জিমের অ্যাডমিশন নিতে পারবেন শিল্পাঞ্চলবাসী। आज की तारीख में जो हेल्थ इशू है, जो पैंडेमिक के बाद में हेल्थ इशू आ रहा है, तो उस हिसाब से मेहता वाला ने जिम चालू किया था। वन ऑफ द बेस्ट जिम, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इक्विपमेंट है और यहाँ पर स्पेस भी है और सफिशिएंट इक्विपमेंट भी है जो एक बॉडी वर्कआउट होता है। यहाँ पे बच्चे से लेकर कोई भी एज पर्सन यहाँ आके आराम से वर्कआउट कर सकते हैं। जितना भी इक्विपमेंट है उसमें सेफ्टी मेजर किया गया है। जैसा बहुत सारी कंपनी का इक्विपमेंट है, ये बेहतर है इसी के, क्योंकि यहाँ पे इंजरी होने का चांसेस बहुत कम है, इंजरी होने का ना की बराबर। तो इन्होंने पहले भी एक जिम चालू किया था, वहाँ पे भी इसी कंपनी का इक्विपमेंट को सक्सेस मिला। आज ये सेकेंड जिम ओपन हो रहा है। हम भी इस कंपनी की तरफ से, बिग स्ट्रॉन्ग कंपनी की तरफ से मैं इसको बधाई दे रहा हूँ। आसनसोल में तो बहुत सारे जिम है, देखिए जिम तो बहुत सारे जिम है, लेकिन इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या फैसिलिटी है अदर्स जिम से? देखिए ये एक तो लोकेशन, आसनसोल में कहीं भी किसी भी जगह से यहाँ पे आसानी से पहुँच सकता है। दूसरा बात है यहाँ का जो इक्विपमेंट, जो कैटेगरी का इक्विपमेंट है आसनसोल में आपका
ऐसा कैटेगोरिकल इम्प्रूवमेंट आपको बहुत कम मिलेगा। और क्वालिटी वाइज जो भी इंटीरियर से लेकर जो भी फैसिलिटीज लोगों के लिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज अनमैचेबल। मैं दावा के साथ बोलता हूँ, जो नेता वालों ने जो कोशिश करके जो जिम खड़ा किया, शायद कोलकाता में भी इतना अच्छा जिम हो। चार्जेस क्या है मतलब एडमिशन के लेकर ये? वो अभी भी हम लोग मतलब अदर्स जिम से कम है कि बेसी है? अदर जिम कॉम्पिटिटिव मार्केट, हम लोग को तो कंपटीशन में रहना है, तो हम लोग को भी एक कॉम्पिटिटिव रेट रखा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ किया, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कोई एक लड़का या लड़की जो भी है जो फिटनेस करने के लिए आएगा, उसको प्रॉपर सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इसमें कंपटीशन में कुछ ये नहीं है कि कंपटीशन कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हम लोग कल तक आपको टोटल डिटेल्स बता देंगे, इसका फीस वगैरह क्या है नहीं है, लेकिन दैट इज रिजनेबल है। ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस को प्रमोट करने के लिए आए हैं। मेनली हमारा जो मोटो है हेल्थ एंड फिटनेस को आगे बढ़ाना। अच्छा, जिम के थ्रू कोई कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या आप लोग इन फ्यूचर? हाँ, फ्यूचर में हम लोग मतलब मेरा दोस्त लोग भी है इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, तो आज की तारीख का सेक्रेटरी है, तो जमीन दे आर माई वेरी गुड फ्रेंड। तो इन फ्यूचर हम भी कोशिश भी करेंगे यहाँ पे फिटनेस के लिए कोई इवेंट वगैरह करने, लोगों को जितना लोगों को बारे में जानकारी होगा उतना फिटनेस के लिए अच्छा होगा। आपका नाम? मेरा नाम है सरोज गोस्वामी। ইন্ডাস নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। বাইকের যে কোনো বেস্ট সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই যোগাযোগ করুন আপনাদের শহরের বেস্ট বাইক সার্ভিস সেন্টার, সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের এখানে যে কোনো মডেলের বাইকের সার্ভিস সঠিক দরে প্রোভাইড করা হয়, তাও আবার খুবই তাড়াতাড়ি। আমাদের সার্ভিস একবার উপভোগ করলে আপনি আবার নিশ্চয়ই আসবেন। তাহলে যে কোনো বাইকের সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই আসুন সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের ঠিকানা দোমহানি বাজার, জামুরিয়া রোড। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন 8918989747 এবং 7001174294 এই নম্বরে। ইন্ডাস নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। আসানসোলে একটি বেসরকারি স্কুলে অনলাইন পরীক্ষার দাবিতে ছাত্রদের বিক্ষোভ। বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলে ছাত্ররা অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসে বলে জানাচ্ছে তাদের অভিযোগ, কোভিড পরিস্থিতিতে এখানে এসে পরীক্ষা দেওয়া ব্যয় সাপেক্ষ, তাই তারা অনলাইনে পরীক্ষা দেওয়ার দাবি জানায় এবং বিক্ষোভ করে। अपना स्टूडेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, इसलिए वो लोग अपनी ऑनलाइन एग्जाम भी कराते हैं। फोटो खिंचाना नहीं है, काम कराना है।
ऑफलाइन एग्जाम होगा। अच्छा तुम लोग क्या चाहते हो? हम लोग ऑनलाइन प्रिंसिपल में बोली थी कि लोग ऑफलाइन एग्जाम ले, पूरा ना किसी से रिव्यू लिया ना कुछ किया ना पेरेंट्स। ऑनलाइन एग्जाम्स भी ऑप्शन में दे रहे हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी ऑप्शन में दे रहे हैं। हम लोग का वैसा कुछ नहीं, हम लोग का है तुम लोग को ऑफलाइन क्लासेस आना पड़ेगा तो तुम लोग कंसेंट फॉर्म लेके आना पड़ेगा, पर उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि तो अगर हम लोग के पेरेंट्स चाहते भी है कि हम लोग ना नहीं जाए स्कूल, फिर भी हम लोग को जबरदस्ती आना पड़ेगा स्कूल, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम का कोई ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। तो अगर हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देंगे नहीं तो हम लोग फेल हो जाएंगे इस बेसिस पे। अगर स्कूल से अगर नहीं थी होता तो आप लोग क्या करेंगे लास्ट में? अगर हम लोग भाई हम लोग जितना बार भी है हम लोग इसके कारण हम लोग क्लासेस भी अटेंड किए, अपना जान का रिस्क लेके फिर भी हम लोग क्लासेस अटेंड किए कि मिस से पूछेंगे कि मिस अगर कोई मान लो किसी को नहीं आना है तो उन लोग के लिए ऑनलाइन एग्जाम का ऑप्शन दिया जाएगा, तो बात घुमा फिरा के उल्टा हम ही लोग के ऊपर टारगेट किया जाता है। मेरे साथ हुआ है 2 बार। अभी फिर हम लोग अंदर गए तो ये वाला चीज घुमा के बोल दिया गया कि एमसीक्यू दे देंगे 40 मार्क्स का, तब तुम लोग को पास करा देंगे। पर कल रात तक भी अगर ब्लूप्रिंट जो दी मिस हम लोग को, जैसे जो मिस हम लोग को बोली वो इंग्लिश पढ़ाती है, तो कल रात को भी हम लोग का ब्लूप्रिंट दी पेपर का, तो उसमें एमसीक्यू का कोई नाम नहीं था। वो खाली अभी मीठा बोलने के लिए खाली एमसीक्यू, ताकि हम लोग अभी तो हम लोग बिना पावर के अंदर गए थे ना, पर पता तो था कि स्टूडेंट लोग आए तो किसी का तो दम पे आया होगा, ऐसा तो नहीं आया होगा, इसीलिए मीठा बोल के भगा दिया गया। और फिर डायरेक्टर साहब आए और फिर प्रिंसिपल मैम आई, तो उन लोग का तो तेवर कुछ और ही था। उन लोग डायरेक्ट बोले कि यार इन लोग को निकालो, एक गार्ड इन लोग को निकालो। अब हम लोग कोई और स्कूल का स्टूडेंट तो नहीं है, वही स्कूल का स्टूडेंट है। और सबसे बड़ा बात तो 11 को तो एग्जाम नहीं है, 11 12 कौन नाम? के होता है एग्जाम। कनिष्क यादव। इसलिए आप लोग यहाँ खड़े हैं आज, क्या कर हम रहे लोग को ऑनलाइन एग्जाम चाहिए। तो क्या बोल रहा है स्कूल? बोल रहा है कि तुम लोग जो करना है ইন্ডাস নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস নিউজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।